Hello everyone. This lecture is for plus 2 medical and non-medical class chemistry. Today's topic is experimental determination of order of reaction. ठीक है जी, जहाँ पर लिख सकते हैं how to find the order of the reaction. How to find the order of the reaction. Order किसी reaction ਦਾ ਕਿਵੇਂ find out ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। तो order ਨੂੰ find out ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ total 5 methods ਨੇ। experimentally practical करके अपने को total 5 methods ने। first method is graphical method. second method is integrated rate method. second method हो गया। third method is initial rate method. fourth one is Ostwald isolation method. fifth one is half-life period method. So there are total 5 methods in order to find the order of the reaction. First method करते हैं अपन। First method is graphical method. Now graphical method ਦੇ ਵਿੱਚ word ਆ ਰਿਹਾ graphical means ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਸ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਾਰਟ A ਐਂਡ ਪਾਰਟ B। ਕਲੀਅਰ? ਪਾਰਟ A ਐਂਡ ਪਾਰਟ B। ਨਾਓ in case of part A ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਰਵ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਕਰਵ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੇਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 0 ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਆਪਣੀ R1 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸੈਕਿੰਡ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ R2। ਫਿਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ R3 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੰਨ ਲਓ C1 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ C2 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ C3 ਹੈ। ਮੀਨਸ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆ ਗਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਰੇਟ ਵਰਸਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਰੇਟ ਵਰਸਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ, ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਅਗਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। R1 ਹੈ, C1 ਜਦੋਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੇਟ R1 ਹੈ, C2 R2 C3 R3, ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੀਨਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਟ ਵਰਸਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੇਅਰ। ਅਗਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ, ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ?
ਸੈਕਿੰਡ 2। अगर ये भी नहीं आ रहा फिर आप की करांगे रेट वर्सिस कंसनट्रेशन क्यू, ਇਹਦਾ ग्राफ प्लॉट करांगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन आता है इट मीनस ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इदा करके आप ग्राफ्स प्लॉट करांगे कंसनट्रेशन वर्सिस टाइम, सॉरी कंसनट्रेशन वर्सिस रेट। तो वो किदां दा ग्राफ आ रहा है, ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन किदां दी आ रही है, वो अकॉर्डिंगली आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दस सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आप मोस्टली किया जी रेट है, अगर अपने को फस्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उत्थे आप लिख दें कंसनट्रेशन की पावर 0। अगर फस्ट है तो कंसनट्रेशन की पावर 1, सैकेंड है तो कंसनट्रेशन की पावर सैकेंड, थर्ड है तो कंसनट्रेशन की पावर थर्ड। तो इदा करके आप रेट्स में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किया हुआ। तो आप ग्राफ भी पढ़े हुए हैं उत्थे। अगर कॉन्सटेंट ग्राफ आता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर इनक्रीजिंग ऑर्डर के ग्राफ आ रहा ओरिजिन की लाइन पास कर दी तो फस्ट ऑर्डर है। अगर ये दोनों चो कोई नहीं आ रहा तो रेट का कंसनट्रेशन की स्केयर के ग्राफ बनाओ। अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है ओरिजिन की पास करता तो सैकेंड ऑर्डर है। अगर ये तीनों नहीं आ रहे तो कंसनट्रेशन का क्यूब कर लो, वो ग्राफ प्लॉट करो तो इदा का ग्राफ आ जाएगा अपने को। क्लीयर है जी। तो ये फस्ट मैथड से ग्राफिकल मैथड जिसे आप ग्राफ स्टडी करने हैं। नाउ सैकेंड मैथड है, सैकेंड मैथड इज़ इंटैग्रेटेड रेट मैथड। ਆਪਾਂ इंटैग्रेटेड रेट इक्वेशनस कीतियां ने तो वो बेसिस ये मैथड है इंटैग्रेटेड रेट मैथड। तो आप की करांगे जिहड़ियां इंटैग्रेटेड रेट इक्वेशनस ने, इंटैग्रेटेड रेट इक्वेशनस वो ये अप्लाई करांगे, वो अकॉर्डिंगली आप ग्राफ में स्टडी करांगे, सॉरी वो अकॉर्डिंगली आप रेट में स्टडी करांगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करांगे। ना जो फस्ट एंड सैकेंड मैथड है ये आप उदों अप्लाई करते हैं जो अपने को रिएक्टेंट की है ओनली वन रिएक्टेंट है, ओनली वन रिएक्टेंट। जो अपने को रिएक्टेंट सिर्फ एक है तो उदों ये दोनों मैथड्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इंटैग्रेटेड रेट इक्वेशनस ने अपने को, अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की गल करिए, जीरो के आप करते होंगे ए नॉट माइनस ए इज़ इक्वल टू के टी। ठीक है जी। फस्ट के लिए करते होंगे आप लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए इज़ इक्वल टू के टी बाय 2.303। ये फस्ट ऑर्डर के लिए अपनी इक्वेशन आ जाती है। नाउ सैकेंड के लिए की आ जाती है, सैकेंड ऑर्डर है 1/a माइनस 1/a नॉट इज़ इक्वल टू के टी आ जाता है। ठीक है जी। ये अपने को जड़ियाँ इंटैग्रेटेड रेट इक्वेशनस ने वो आ जाती ने। तो ये आप करते होंगे ए का ग्राफ प्लॉट करते होंगे वर्सिस टी के नाल, ये लॉग ऑफ ए का ग्राफ प्लॉट करते होंगे वर्सिस टी के नाल, थर्ड के आप करते हैं 1/a का ग्राफ प्लॉट करते हैं वर्सिस टी के नाल। अगर अपने को ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, ये आप ग्राफ प्लॉट किया ए का ग्राफ प्लॉट किया आप टी के नाल। अगर ये ग्राफ इदा का आ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर के कंसनट्रेशन विद रिस्पैक्ट टू टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर के ग्राफ आता है इट मीनस अपना ऑर्डर की है जीरो ऑर्डर है। अगर इट मीनस अपना जोड़ा डाटा है वो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इट मीनस वो की है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इदा नहीं आ रहा तो तुसी की करना है लॉग ऑफ ए का ग्राफ प्लॉट करना है टी के नाल। अपन जोड़ियाँ ए वाली वैल्यूज़ ने उन्होंने सारिया का लॉग लै लो, वह फिर टाइम के नाल ग्राफ प्लॉट करो। अगर ये ग्राफ इदा का आ रहा है इट मीनस ये फस्ट ऑर्डर है। अगर इन्होंने दोनों चो कोई नहीं आ रहा फिर तुसी की करना ग्राफ प्लॉट करना है, वही जी ए वाली वैल्यूज़ ने उन्होंने इनवर्स कर दो 1/a तो टाइम के नाल ग्राफ प्लॉट करो। ये इनक्रीजिंग ऑर्डर के अगर ग्राफ आता है तो सैकेंड ऑर्डर का ग्राफ है। क्लीयर। तो आप इदा करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस यूज़ की किया इंटैग्रेटेड रेट इक्वेशनस यूज़ कीतियां ने। ये इक्वेशनस ने ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ का जोड़ा नेचर है वो आ रहा है। अगर अपना डाटा जोड़ा आप प्रैक्टिकल किया है वो इस ग्राफ में ओबे कर रहा है इट मीनस वो जीरो ऑर्डर है। अगर इस कर रहे तो फस्ट ऑर्डर है, अगर इस कर रहे तो सैकेंड ऑर्डर है। तो इदा भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अपना थर्ड मैथड है इनिशियल रेट मैथड। इनिशियल रेट मैथड, इनिशियल रेट मैथड तो इस तो अगला उस वाल आइसोलेशन मैथड, ये दोनों मैथड आप यूज़ करते हैं अगर अपने को मोर दैन
वन रिएक्टेंट है, मोर दैन वन रिएक्टेंट, एक तो ज़्यादा अगर रिएक्टेंट्स ने तो उत्थे आप अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूले। आप इनू एग्जाम्पल ना समझते हैं। सपोज करो ए प्लस बी पी प्रोडक्ट दे रहे हैं, ए तो बी दो रिएक्टेंट ने, आपको पता नहीं कि यदा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की है, आप सिंपली लिख लिया रेट इज इक्वल टू के ए दी पावर ए है बी दी पावर बी है, तो यदा ऑर्डर की हो गया अपने को ए प्लस बी, तो यह ए तो बी की आपको वैल्यू पता नहीं हैगी। आप की करा रिएक्शन सेम स्टडी करा, ए की कंसनट्रेशन है, इतने बी की कंसनट्रेशन लिख लो, इतने लिख लो यदी रेट। सपोज कर लो जी यदी कंसनट्रेशन है, ठीक है जी, वो हैगी अपने को 0.30, यदी कंसनट्रेशन है 0.30, यदी रेट हैगी है सपोज करो R1 है, ठीक है जी, ठीक है। यदी कंसनट्रेशन 0.30 लिखी, यदी भी 0.30 लिखो। इनीशियल कंसनट्रेशन है, जो रिएक्शन स्टार्ट हुई नाल दी नाल आपां रेट फाइंड आउट कर ली, मीनस इनीशियल रेट आप इसकी फाइंड आउट कर ली R1 आ गई। फिर आप की करांगे, एक प्रैक्टिकल से दूसरा प्रैक्टिकल किया, दूसरे प्रैक्टिकल के आप की रेट जी हैगी आपने डबल करती, यदी कंसनट्रेशन डबल करती 0.60 करती, यदी कंसनट्रेशन आप 0.30 रखी, तो अपनी रेट सपोज करो 2R1 आ गई, 2R1, ठीक है। मैं वैसे ही लिख रहा इतने समझाने लिए। तीसरा आप यदी रेट जी हैगी यदी कंसनट्रेशन जी हैगी 0.60 रखी, तो यदी कंसनट्रेशन चेंज करके आप 0.60 करती, ठीक है जी। तो यदी रेट पर की इफैक्ट पिया वो आपने फाइंड आउट कर लिया, सपोज करो वो भी 2R1 आ गया। इतने वेरी कर सकदियां ने ये चीज़ां। तो आप करना की है मेनली, पहला प्रैक्टिकल किया सेम रिएक्शन का जिहदे आप दोनों की कंसनट्रेशन सेम रखी, फिर सैकेंड प्रैक्टिकल के आप कंसनट्रेशन यदी चेंज करती, यदी कॉन्सटेंट रखी, फिर थर्ड के कंसनट्रेशन सेम रखी, यदी कंसनट्रेशन चेंज करती। तो आप ये इनीशियली कंसनट्रेशन रखते हैं, इनीशियली आप रेट फाइंड आउट कर ली, ठीक है जी। इनीशियली जिन्नी रेट सी हरेक प्रैक्टिकल की आप फाइंड आउट कर ली ना। हुण आप यही वैल्यूज़ आ वाली इक्वेशन के पुट करके वेखते हैं। पहला ए वाली वैल्यूज़ पुट करा, ए की थां ते तुसीं 0.30 पुट करो, रेट की थां ते R1 पुट कर लाँगे, के ए की जगह तो 0.30 पावर ए, बी की जगह 0.30 पावर बी, ये इक्वेशन आ गई अपनी 1। ना सैकेंड हुण ए वाला पुट करा आप, ये रेट आ गई 2R1, के 0.60 पावर ए 0.30 पावर बी, ये सैकेंड आ गई। थर्ड तो आप पुट करते हैं, थर्ड तो अपन जो वैल्यूज़ ने 0.60 पावर ए 0.60 पावर बी, ये थर्ड आ गई। ना हुण देखो अगर आप 1 ते 2 नूं डिवाइड कर दईए तो ए वाली कट गई, ए की वैल्यू आ जूगी। अगर आप 2 ते 3 नूं डिवाइड करते हैं तो ए वाली कट जू, बी की वैल्यू आ जू। मीनस आप इदां करके ए एंड बी दी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप ए तो बी नूं प्लस करांगे, प्लस करन तो बाद अपना की आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिंपल। तो इनीशियल रेट मैथड के आप करना की है, कंसनट्रेशन चेंज करके किसी भी एक रिएक्टेंट दियाँ वो रेट पर की इफैक्ट पै रहा वो फाइंड आउट करांगे, ठीक है जी। जानी कि इतने जी रेट फाइंड आउट करनी है वो इनीशियल रेट फाइंड आउट करनी है। एवं नहीं है कि आप ये एक प्रैक्टिकल किया ये दोनों की इनीशियल कंसनट्रेशन ये लैके चले हैं, तो ये जी रेट एक तो फाइंड आउट कर ली, एक 10 मिनटों बाद फाइंड आउट करा, फिर 15 मिनटों बाद करा, एवं नहीं करना। जस्ट जी इनीशियल रेट है वही फाइंड आउट कर ली पहली प्रैक्टिकल की, पहला प्रैक्टिकल हो गया डन। फिर सैकेंड प्रैक्टिकल करेंगे, सैकेंड प्रैक्टिकल की इनीशियल रेट फाइंड आउट करा, वो भी डन होगी। फिर थर्ड प्रैक्टिकल करा, एवं करके करना है, ठीक है जी। तो एवं करके आप, क्योंकि ये न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं तुहानूं एवं डिटो आ वाली वैल्यूज़ दित्तियां होया करनगियां, सेम ही जो न्यूमेरिकल तुसीं सॉल्व करना। तो इदा करके आप ए ते बी दी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नैक्सट है जो ओसवाल डाइल्यूशन मैथड है वो सेम है एज दैट ऑफ इनीशियल रेट मैथड, वो तुसीं खुद करके देखना है। आप फिफ्थ करते हैं हाफ लाइफ पीरीयड मैथड, हाफ लाइफ पीरीयड मैथड। जो टी हाफ है अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए करना है तो यह ए नॉट के डायरैक्टली प्रपोर्शनल है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करना तो ए नॉट की पावर इतने 0 आ जाती है। अगर सैकेंड के लिए करना है तो ए नॉट की पावर इतने क्या आती है -1। अगर थर्ड के लिए करना ए नॉट की पावर की आ जाती है -2। क्लीयर। तो एवं करके जो टी हाफ वो वेरी करता है। अगर आप जनरली लिख लीए कि टी हाफ जोड़ा है ए नॉट की पावर 1 - n है फॉर n ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, तो ये जनरल फार्मूला बन गया। क्लीयर। टी हाफ इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 - n, ठीक है जी।
अपने को सपोज करो कोई रिएक्शन चल रही है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट बनता है। आप ये दो टी हाफ फाइंड आउट कर लाँगे, एक टी हाफ 1 आ जाऊगा, एक टी हाफ सेकेंड आ जाऊगा। कोई भी दो हाफ लाइफ पीरियड आप ये फाइंड आउट कर ले, ठीक है। टी हाफ 1 की आ गया अपना A1 की पावर, आप A1 की पावर लिख लें, A1 की पावर 1 - n, ठीक है। टी हाफ सेकेंड की आ गया अपने को, इतने A0 ही लिख लो क्योंकि इनिशियल कंसनट्रेशन ही लिखनी है। ये आ गया 1 - n, क्लियर। ये आ गया टी हाफ 1 एंड टी हाफ सेकेंड आ गया। ओके, इतने आप चेंज कर लें कंसनट्रेशन क्योंकि सैकेंड हाफ के लिए जी कंसनट्रेशन वो चेंज हो जानी है। इतने आप सपोज करो A0 लिख ली तो इतने A1 लिख लेनी है, ठीक है जी, क्योंकि सैकेंड हाफ जो कढ़ना है उदों कंसनट्रेशन इनिशियल चेंज करनी पेगी अपन, तो इतने A1 लिख ली है, ठीक है जी। जिमें अपने को स्टार्टिंग कंसनट्रेशन A0 है, जे आप इसका टाइम हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करना है तो अपनी इनिशियल कंसनट्रेशन A होगी। आप की करना सैकेंड कोई हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करना, उदों सपोज करो यदि कंसनट्रेशन A है, A1 है, तो सैकेंड हाफ कढ़न के लिए, सैकेंड हाफ लाइफ पीरियड कढ़न के लिए अपनी इनिशियल कंसनट्रेशन A बन जू, ना कि A, क्लियर। यह चीज़ है ना। अगे अगे की करना, आप टी हाफ 1 तो टी हाफ 2 आप डिवाइड कर देंगे, टी हाफ 1 टी हाफ 2, इनू अगर डिवाइड करता तो अपने को इत्थे क्या आ जाएगा, A1 की पावर 1 - n, A0 की पावर 1 - n, क्लियर। ये आ जाएगा टी हाफ 1 टी हाफ सेकेंड, ये आ गया। इनू की लिख सकते हैं आप A1 बाय A0 की पावर 1 - n, क्लीयर है जी। हुण पावर 1 - n है, अगर आप दोनों साइडों पर लॉग ले ली तो इनू सॉल्व कर सकते हैं। इधर आ जाऊगा लॉग टी हाफ 1 टी हाफ सेकेंड, दोनों साइडों पर आप लॉग ले लिया ताकि आप इनू सॉल्व कर सकीए A1 बाय A2, क्योंकि अपनी जी क्वांटिटी है वो पावर के आ रही है, तो आप सॉल्व करना तो लॉग लवेंगे। जो आप लॉग लें किसी क्वांटिटी का, वो पावर भी है तो पावर अगे आ जानी है, पावर आ गई 1 - n अगे, लॉग ऑफ A1 बाय A0, ठीक है जी। ना अगे आप n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इतों वो देखो कि कैलकुलेट होएगी, लॉग ऑफ टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2 अपॉन च आ गया लॉग ऑफ A1 बाय A0, इधर आ गया 1 - n, ठीक है। और n की वैल्यू की आ गई अपने को 1 - लॉग ऑफ टी हाफ 1 बाय लॉग ऑफ टी हाफ 2 अपॉन च आ गया अपने को लॉग ऑफ A1 बाय A0, तो अपनी n की वैल्यू कैलकुलेट हो जानी है। मतलब अपनों टी हाफ 1 चाहिए, टी हाफ सेकेंड चाहिए, A1 तो A0 दियाँ वैल्यूज़ चाहिए ने, तो आप n की वैल्यू इतों कैलकुलेट कर सकते हैं। मीनस एको रिएक्शन के दो हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट कर लो, तो दो ही कंसनट्रेशनस फाइंड आउट कर लो, ये वैल्यूज़ के पुट कर लो, n की वैल्यू अपने को आ जानी है, ठीक है जी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपैरीमेंटली आप इदा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 5 मैथड्स ने, इन्हों चौथा मैं तुम्हें करवाया नहीं, चौथा तुम आप खुद करके वेखना। तो ये पंजों के पंजों मैथड चंगी तरह डिटेल कर लेने ने। असल ये PhD लैवल का काम है, बट तुम एक बार सीख लो कि ऑर्डर में एक्सपैरीमेंटली आप किमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नैक्सट वीडियो के।